Yeah. Today we will start chapter 1 of class 8 from Salina Publications. This chapter name is sets. Do you know what is set? Yes. Sanvi? Yes, Sanvi, sir. what do you mean by sets? Yeah. Of a, a group of something is called set. A set is a collection of well-defined, distinct objects. A set is a collection means collect karna, of well-defined, distinct matlab different, distinct objects. These objects are called elements or members of that set. This is called elements or members of that set. For example, name of students of your class. Okay. Name of family member of your name your family members. That is a collection of sets. Okay. That is called set. That is a collection of names. Your name is Sanvi, your mother name, your father name, and your brother, sister, all is a collection. That is a set. Alphabets A to Z, 26 alphabets are there. Alphabet is also a collection. अभी इसके अंदर बच्चे representing sets. Next topic क्या है? Representing sets. What do you mean by sets? A set can be represented in the following three forms. First form is description. पूरी description देनी. That is called description set. For example, जैसे इन्होंने दिया है बच्चे यहाँ पे set of natural numbers. Set of natural number. Natural number तो क्या है? Infinite है. उसको हम इस एक ब्रैकेट में नहीं लिख सकते. अगर लिखेंगे भी तो इस टाइप से लिखेंगे 1 2 3 up to infinite. Understood? Set of natural numbers. और क्या आ जाएगा बच्चे? Set of natural number less than 20. Set of prime numbers. Set of composite numbers. That is a description. Description में देना मतलब जैसे natural number लिखना हो. Natural number less than 20 या less than, जैसे इन्होंने एग्जांपल ली है, क्या लिखा है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 20. तो वही सेम टू सेम चीज जो क्वेश्चन में लिखी है वही लिख देनी है करली ब्रैकेट के अंदर. नेचुरल नंबर्स लेस देन 20. डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं ना हम सेट के अंदर, मतलब करली ब्रैकेट के अंदर वी विल एक्सप्लेन दैट इज नेचुरल नंबर लेस देन 20. दिस इज अ डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं हम, उसकी डिस्क्राइब कर रहे हैं उसको. नेचुरल नंबर पता है ना क्या होते हैं सानवी? What do you mean by natural numbers? Natural numbers 0 to 9. 0 to infinite. Like there are many natural numbers. 0 is not a natural number, बच्चे. 0 is not a natural number. Natural number are starting from 1, 1 2 3 up to 1. infinite. That are called natural numbers. Understood? Numbers. Yes. Second type बच्चे representing sets की, that is a roster or tabular form. Roster or tabular form. A roster और टेबुलर मतलब एक ही चीज के दो नाम है, चाहे टेबुलर फॉर्म बोल दो चाहे रोस्टर फॉर्म बोल दो ना. सानवी, व्हाट इज योर निकनेम? सानवी, व्हाट इज योर निकनेम? Yeah. My nickname Samu. Samu. Samu or Sanvi, that is the same thing ना.
हम Yeah. सानवी One को person. ओके यू अंडरस्टैंड हिंदी ना Yeah. ओके रोस्टर और tabular form. In this form, we make a list of elements. We make a list of elements separated by commas. Separated by commas. Commas से बच्चे इसको separate करेंगे. And enclosed. Enclosed मतलब किसके अंदर बंद कर देंगे उसको? Enclosed within curly bracket. Curly brackets. Curly bracket is this one. Okay. Now, for example, set of natural number less than 10. Set of, chalo, prime number you know very well or not? Do you know which are the prime numbers? मैं example ले रहा हूँ. Yes, Set of sir. prime Yeah. numbers less than 20. Set of prime numbers less than 20. First prime number is 2, 2. Second one is 3, 5, next one is next one 7, next one. 9, No, 9 is not a prime. 11. 11. Sorry. Next one is 11, 13. next one. 17. And last one is 19, less than 20. This is called roster form. This form is called roster form or tabular form. Understood? Yeah. अब इसके बाद बच्चे हमारे पास आ जाता है सेट बिल्डर फॉर्म. थर्ड जो टाइप है दैट इज सेट बिल्डर फॉर्म और रूल मेथड. और इसको क्या बोल देते हैं? रूल मेथड. इसके अंदर बच्चे जैसे ए करली ब्रैकेट एक्स. दिस मीन्स ये एक लाइन खींच ड्रॉ कर दी मैंने. दिस मीन्स सच दैट एक्स सेटिस्फाई द प्रॉपर्टी. उसकी एक्स की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी पड़ेगी. सेटिस्फाई द प्रॉपर्टी. curly bracket close. For example, एक हमें सेट दे दिया या नंबर्स दे दिए. क्या नंबर दे दिए? एक ए सेट दे दिया. जैसे इन्होंने लिया है 4, मैं चेंज कर रहा हूं 4, 8, 12 एंड सो ऑन. ये किसका टेबल है? 4 का टेबल है ना. 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16 एंड सो ऑन. तो इसको बच्चे सेट बिल्डर फॉर्म में क्या कैसे लिखेंगे? A इज इक्वल टू करली ब्रैकेट x सच दैट x क्या है यहाँ पे? एलिमेंट्स क्या हैं? 4 8 12. 4, 8, 12. तो इसको कैसे लिखेंगे? इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी? इसकी क्या चीज है ये? 4 मल्टीपल ऑफ 4. x इज अ मल्टी मतलब पहला एलिमेंट भी 4 का मल्टीपल है, सेकंड भी, थर्ड भी एंड सो ऑन. x इज अ मल्टीपल ऑफ 4. This is called set builder form. Set builder form. इसको क्या बोलते हैं? Set builder form बोलते हैं. For example, एक सेट गिवन था हमें, रोस्टर फॉर्म में गिवन था, मतलब टेबुलर फॉर्म में. उसको किस में लिखा हमने? This is called set builder form. Set builder notation भी बोल देते हैं इसको, और रूल मेथड भी बोल देते हैं. Understood? आया समझ बच्चे? Yes, sir. अब Yes. बच्चे नेचुरल नंबर. डिफाइन नेचुरल नंबर. नंबर सिस्टम थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करते हैं. नेचुरल नंबर मींस, सानवी बोलो बच्चे. Yes. Natural numbers, like we have, I have to tell all now. Natural numbers. या टेल मी. नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 Numbers starting from 1, up to 2, 3, 4, up to infinite. infinite.
that is called natural number. whole number बच्चे, Natural numbers. whole numbers क्या होंगे? Sanvi, 1 to 9. 0 to infinite. Your bandwidth Okay. will is slow. Net is slow. Network is issue is there. Yes, sir. Okay. Wi-Fi नहीं लगा हुआ घर पे, लगाया है. तो Wi-Fi से कनेक्ट किया करो ना बच्चे, मोबाइल डाटा मत यूज किया करो. Sanvi, are you I'm listening? doing from laptop. Yes, sir. Laptop. Wi-Fi is used. You are using Wi-Fi Yeah, now? Wi-Fi. Yeah. Okay. Now whole number, natural number, whole number, then integers. Define integers. What do you mean by integers? Integers means like my negative and positive. Negative Number. infinite to -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, up to infinite. All positive means all positive, 0, and all negative countable numbers. Yeah. Are called integers. उनको क्या बोलते हैं बच्चे? Integers. Integers. उसके बाद बच्चे Q, that is rational number. Rational number की definition. Do you know rational number? चलो मैं बता देता हूँ. The number which can be written in the form P upon Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0. P and Q are integer and Q is not equal to 0 is called, मतलब denominator, numerator upon denominator की form में होते हैं, that are called rational numbers. Where P and Q क्या है? Integer, negative, positive कुछ भी हो सकते हैं. अब इन सबको बच्चे में natural number, whole number, integer and rational number. Natural number is denoted by capital N. Whole number is capital W. Integers capital I और Z. दोनों में से बच्चे कोई भी यूज कर सकते हैं. Capital I और capital Z. Rational number is denoted by Q. Capital Q से. इन सबको बच्चे हम मतलब उसमें लिखते हैं सेट फॉर्म में. n को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? कर्ली ब्रैकेट 1 2 3 up to infinite. This is natural representation of natural number. Capital W 0 1 2 3 up to infinite, and integers I or Z. We have to write down it as up to -3, -2, -1, 0, 1 2 3 up to infinite. बेटा ठीक है सानवी? Your name is Yes, sir. Sanvi. Pronunciation is Sanvi or Sanvi? Sanvi. Sanvi. Okay. बच्चे कुछ भी समझ ना आए ना बच्चे पूछ लेना है तभी. Understood? ये नहीं. Okay. हाँ. और मुंह फेस पे स्माइल रखनी है कि मम्मा ने धक्के से हाँ वेरी गुड गुड ऐसे. अब रैशनल नंबर को बच्चे हम कैसे, रैशनल नंबर तो बहुत हैं, ऐसे तो है नहीं -3 -2 -1. तो रैशनल नंबर्स को बच्चे हमने कैसे रिप्रेजेंट करना है, उसको हमने ऐसे करना है. x such that x is equal to p upon q, where p and q, this is the symbol of belongs to. ये जो सिंबल है, this is the symbol of belongs to. p and q किसको बिलोंग कर रहे हैं? रैशनल नंबर में p and q आर इंटीजर ना. इंटीजर मतलब
I or Z belong to I and Q is not equal to 0. ये कौन सी फॉर्म है? This is called, हमने की थी ना अभी, Set builder. set builder form. This is called Roster method. Very good. अब इसके बाद आते हैं बच्चे फाइनाइट, जैसे नेम फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स. फाइनाइट मींस लिमिटेड. Countable. लिमिटेड मतलब जिनको हम काउंट कर सकते हैं, और वी कैन से लिमिटेड मतलब लिमिट है उसकी. जैसे फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर, तो 1 से लेके 100 तक है ना, हम काउंट कर सकते हैं ना उनको, 1 से लेके 100 तक. Yes. That is countable. इनफाइनाइट, अब नेचुरल नंबर्स, टोटल नेचुरल नंबर्स काउंट करो, तुम सारी उम्र लगे रहोगे, सारी मतलब तुम्हारी एज निकल जाएगी, तब भी हम काउंट कर लेंगे सारे नेचुरल नंबर्स. कर सकते हैं सानवी? नहीं. No. That are non-countable numbers. That are called non-countable numbers. Number. सानवी, मैथ इंटरेस्टिंग लगता है कि नहीं लगता? पहले तो ये बताओ. लगता है. सही सही, झूठ नहीं बोलना. नहीं सर, झूठ नहीं बोल रही. पक्का? हाँ, अच्छा लगता है मैथ? हाँ. करोगे बच्चे ढंग से तो बहुत आगे ले जाऊंगा तुझे. ठीक है? अंडरस्टूड? या. बस करना पड़ेगा. फाइनाइट मैथ तो बहुत इजी सब्जेक्ट है, एक बार आने लग जाए ना इसलिए तो सबसे आगे निकल जाते हैं. अब जैसे इनफाइनाइट सेट और फाइनाइट. फाइनाइट की एग्जांपल, सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास और योर स्कूल. स्कूल में फिक्स ही होंगे ना बच्चे, ऐसे तो नहीं है कि मतलब स्कूल की स्ट्रेंथ 2000 है, अगले दिन 2500 हो जाएगी, उससे अगले दिन 3000 हो जाएगी. दैट इज पॉसिबल? नो ना. नो. हमारी क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, मान लो सपोज देयर आर 50 स्टूडेंट्स इन योर क्लास. ये तो नहीं है एक दिन 60 आ जाते हैं, उससे अगले दिन 100 आ जाते हैं, उससे अगले दिन 200 आ जाते हैं. नो ना, फिक्स ही रहेंगे ना. हाँ, 1-2 एब्सेंट होते हैं तो दैट इज डिफरेंट इशू. मींस number of students of your class, number of students in your class or school, in school या class जैसे मर्जी लगा लो, लिख लो. This is a example of finite set. Infinite set, infinite set में क्या आएगा? Number of stars in the sky. Yeah, very good. Number of stars in the sky. और one more example, set Number of all of hair on the head. number of hairs on the head. Very good. वो तो काउंट कर सकते हैं बच्चे हम, कि नहीं काउंट कर सकते? नहीं. कर सकते हैं. जिसके बाल ही मतलब कम हो उसके तो काउंट हो सकते हैं. हाँ. हाँ. चलो, पर नहीं, ये भी क्या आएगा? इनफाइनाइट सेट में आएगा. और कोई एग्जांपल, नंबर ऑफ सेट ऑफ ऑल फ्रैक्शन या रैशनल नंबर्स. सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स. रैशनल नंबर भी इनफाइनाइट है. सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर भी इनफाइनाइट है. यस और नो? यस. अब यहाँ पे लिख दूं सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 100, तब तो फाइनाइट है वो. जब अकेला लिखा है बच्चे सेट ऑफ नेचुरल नंबर, दैट मींस दैट इज इनफाइनाइट. आई समझ? यस और नो? नाउ यस सर. नेक्स्ट टॉपिक इज हमारे पास कार्डिनल नंबर. कार्डिनल नंबर, नंबर NO डॉट डालना जरूरी है, अदरवाइज वो नो बन जाएगा. नंबर में NO डॉट डालना जरूरी है बच्चे. कार्डिनल नंबर ऑफ अ फाइनाइट सेट. इनफाइनाइट में नहीं होगा कार्डिनल नंबर, फाइनाइट में ही होगा ओनली.
फाइनाइट सेट में जहां पे काउंटेबल है. कार्डिनल नंबर मींस, डू यू नो व्हाट डू यू मीन बाय कार्डिनल नंबर? Number of elements, number of different elements in a set. Okay. जैसे सपोज मैंने एक सेट लिख दिया. How many numbers are there? How many numbers are here? 1, 2, 5. 5. Then this is cardinal number is 5. इसको डिनोट कैसे करते हैं? एन ए. मान लो ये ए सेट था तो ए लिखेंगे, बी सेट होगा यहाँ पे तो बी लिखेंगे, इज 5. और एग्जांपल ले लेता हूं बच्चे मैं. This will be taken as C. And C, cardinal number here is 6. 6. Very good. इसके बाद आते हैं बच्चे हमारे पास जो टॉपिक, दैट इज एम्प्टी, नॉन एम्प्टी एंड सिंगलटन सेट्स. एम्प्टी सेट. नेक्स्ट टॉपिक इज एम्प्टी सेट. व्हाट डू यू मीन बाय एम्प्टी सेट? इसका एक नेम हो रहा है नल सेट. नल का मतलब भी कुछ नहीं होता, मतलब जीरो. कोई एलिमेंट जिसमें ना हो, There दैट are इज no elements in the set. yes, having no elements. Having no element in the set is called empty set. For example, जैसे इन्होंने एग्जांपल ली है, एक सेट गिवन है सेट विडल नोटेशन में, x belongs to natural and 4 less than 5, x less than 5. अब 4 और 5 के इन बिटवीन कोई नेचुरल नंबर है? क्योंकि तो x किसको बिलोंग कर रहा है? नेचुरल को. 4 और 5 के बीच में तो डेसिमल नंबर्स हैं. डेसिमल नंबर्स आर नॉट नेचुरल. अंडरस्टूड? दिस इज अ एग्जांपल ऑफ एम्प्टी सेट. ये किसकी एग्जांपल है? एम्प्टी सेट की. Empty set. अभी जैसे चलो नल या एम्प्टी सेट को किससे नोट करते हैं बच्चे? 5 से. दिस इज कॉल्ड 5. ऐसे लिखेंगे बच्चे उसको. ओके, 5. दिस इज PHI 5. दिस इज अ सिंबल ऑफ 5. ये किसका सिंबल है? 5 का सिंबल है बेटा ये. अंडरस्टूड? समझे बच्चे? नाउ सेकंड वन इज नॉन एम्प्टी सेट. नॉन एम्प्टी सेट. नॉन एम्प्टी सेट का मतलब हैविंग at least one element. Having at least one element. एक एलिमेंट हो जिसमें, दैट इज कॉल्ड नॉन एम्प्टी सेट्स. उसको क्या बोलते हैं? नॉन एम्प्टी सेट्स बोलते हैं बच्चे. हैविंग एट लीस्ट वन एलिमेंट, और वी कैन से हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट. हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड नॉन एम्प्टी सेट. को क्या बोलते हैं? नॉन एम्प्टी सेट बोल देते हैं बच्चे. आई समझ? Yes sir. इसके बाद आते हैं बच्चे सिंगलटन सेट. सिंगलटन सेट का मतलब सिंगल एलिमेंट. हैविंग सिंगल एलिमेंट, having only one element. Single element मतलब only one element is called singleton set. For example, x belong to natural, x belong to natural and x is less than 2. Where x is less than 2. 2 से लेस नेचुरल नंबर कितने हैं? Only one. Yes.
तो single element is there, then this is called singleton element, singleton set. इसके बाद आते हैं बच्चे Okay. unequal and equivalent sets. First one is equal, second one is unequal, and third one is equivalent. Equivalent sets. Equal sets मतलब सेट ऑफ, मान लो 2 सेट्स हैं ए एंड बी, ए के एलिमेंट भी 1 2 हैं, बी के एलिमेंट भी 1 2 हैं, 2 1 या 1 2, दैट इज कैसे मर्जी लिख लो, तो ये दोनों क्या है, इक्वल सेट्स हैं. अंडरस्टूड? दैट मींस सेट ए इज इक्वल टू सेट बी, सेट ए इज इक्वल टू सेट बी, दैट इज इक्वल सेट. मैंने एग्जांपल ले ली इक्वल सेट्स की, मतलब एलिमेंट सेम हो, 1 2 है एलिमेंट तो 1 2, 2 3 है तो 2 3, 3 2 है तो 3 2, 5 6 है तो 5 6, सेम एलिमेंट्स आर देयर, दैट इज कॉल्ड सिंपल. इक्वल का मीनिंग तो हमें पता ही है ना, इक्वल का मीनिंग सेम. तेरे पास भी 100 रुपीज है, मेरे पास भी 100 रुपीज है, तो दोनों की अमाउंट क्या है, सेम है ना, दैट इज हैविंग इक्वल अमाउंट. अनइक्वल, तेरे पास 100 रुपीज है, मेरे पास 1000 रुपीज है, दोनों की अमाउंट इक्वल है, नहीं ना, No. दैट इज कॉल्ड अनइक्वल. अनइक्वल मतलब मान लो ए सेट है, उसके एलिमेंट है 1 2 3, बी सेट है, उसके एलिमेंट है 3 4 5. एक सेट, एक नंबर चाहे सेम था बट सारे नंबर सेम होने चाहिए थे, यहाँ पे भी 1 2 3 होना चाहिए था, तो वो इक्वल आता. अब ये क्या है, नॉट इक्वल. अनइक्वल मतलब नॉट इक्वल, ऐसे इक्वल का सिंबल डाल के कट लगाना है, दैट इज कॉल्ड अनइक्वल. ए इज नॉट इक्वल टू बी इज कॉल्ड अनइक्वल सेट. इसके बाद आते हैं बच्चे हमारे पास क्या आता है, इक्विवेलेंट सेट. इसके बाद क्या आता है, इक्विवेलेंट सेट. अंडरस्टूड? इक्विवेलेंट सेट का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय इक्विवेलेंट? Equivalent. इक्विवेलेंट और इक्वल में क्या डिफरेंस है? इक्वल में क्या होना चाहिए था, एलिमेंट सेम होने चाहिए थे, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होने चाहिए. मतलब एलिमेंट्स को, जैसे ये दोनों सेट लिखे हैं मैंने ए एंड बी, 1 2 3 3 4 5, कार्डिनल नंबर या नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं इसमें, 3, इसमें भी कितने हैं, 3, तो ये दोनों सेट क्या है यहाँ पे, इक्विवेलेंट है. Equivalent. ओके, मतलब सेम नंबर ऑफ एलिमेंट, और वी कैन से कार्डिनल नंबर, और वी कैन से हैविंग सेम कार्डिनल नंबर आर कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट्स. उनको क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट सेट बोलते हैं बच्चे. अंडरस्टूड? समझ आया? Yes. एग्जांपल ये रही बच्चे, ए और बी जो अनइक्वल सेट थे ना, वो इक्विवेलेंट सेट्स हैं अनइक्वल बट इक्विवेलेंट आर देयर, जो एग्जांपल मैंने यहाँ पे ली है. ठीक है सनवी? Yeah. सानवी, नॉट सनवी, सॉरी. एक्सरसाइज बच्चे 1.1. Which of the following collection are well defined? All students in a school is well defined. First का A part, all students in a school is well defined or not? Yes or no? Well defined. Yes. Sure? Yes. Okay. Yes. Why? Why? This is well defined. Give me the reason. Because there are only particular number of people, students in a class. Very good. Class or school? क्लास और स्कूल. ये तो है नहीं 10th का स्टूडेंट तुम्हारी क्लास में आके बैठ जाएगा या दूसरे स्कूल का स्टूडेंट तुम्हारे स्कूल में आके बैठ जाएगा, नहीं ना. तो ऑल स्टूडेंट्स इन स्कूल इज वेल डिफाइंड. उनके पास, स्कूल के पास सारी मतलब
हर एक बच्चे का पता होता है कि इसका एड्रेस क्या है, सारा रिकॉर्ड होता है. अंडरस्टूड? सेकंड, all planets in our solar system. That is also true. Well defined. Yes. C, all sweet smelling flowers in a garden. All sweet smelling flowers in a garden. Finite or Not a not? set. Not a set. No, not well defined. Set तो है, but well defined नहीं है. हमें क्या पता कौन किसकी स्मेल स्वीट है. तेरे को किसी और फ्लावर की स्मेल स्वीट लगती होगी, मेरे को किसी और फ्लावर की स्मेल स्वीट लगेगी. दैट्स द डिफरेंट. सबके लिए सेम नहीं होगा. अब किसी को गुलाब से एलर्जी है, ठीक है, रोज से एलर्जी है, तो उसको छींकें लग जाती हैं, उसको वो स्वीट नहीं लगेगी. ऐसी डिफरेंट बात. डी, ऑल गुड स्टूडेंट्स इन ए कोर्स. एक कोर्स में सारे के सारे गुड स्टूडेंट्स, ये वेल डिफाइंड है कि नहीं है? Not a set. नॉट अ सेट. वेल डिफाइंड बच्चे, Not a वेल set. डिफाइंड. सेट नहीं पूछा उन्होंने. सेट तो बन जाएगा वो, बट वेल डिफाइंड नहीं है. नहीं है well defined. Okay. Next one is E part. All movie released in 2000 in India. Yes. सारी की सारी जितनी भी मूवीज रिलीज हुई हैं वो काउंट कर सकते हैं हम, है ना? Yes. F, all easy problems in a book on puzzle. Not well defined. Because why? मेरे को Because some puzzles are easy for you, some puzzles are not easy. अब मेरे को Like इजी लग easy रहा first. होगा बट तेरे को नहीं टफ लगेगा, तो दैट इज अ डिफरेंट इशू ना. तो वहां पे हम डिफाइन नहीं कर सकते. सानवी Yeah. को ये अच्छा नहीं लगा, मतलब वो नहीं हुआ, और मेरे को टफ लगा, मेरे को इजी लगा. दोनों का डिफरेंट वो हो गया ना आंसर. दैट इज नो. जी पार्ट. ऑल फैट पर्सन इन मुंबई. Not well defined. Not well defined. Not well defined. Very good. FG. H part beta. All rich people in India. Not well defined. Not well defined. कोई शो कर देता है, कोई शो नहीं करता. सपोज सानवी के पास 10 करोड़ रुपए हैं, ठीक है सानवी? हाँ देखो स्माइल देखो कैसी आती है 10 करोड़ को सुन के. वेरी गुड. अब किसी को नहीं पता कि सानवी के पास 10 करोड़ रुपीस हैं, तो वो क्या है? वेल डिफाइंड नहीं है. अब यहाँ पे रिच पीपल की डेफिनेशन क्या है? 5 करोड़ को भी वो लेस ले रहे होंगे. जो जिसके पास 5 करोड़ से भी ज्यादा है तो उसको लेस समझ रहे होंगे, ये तो अमीर नहीं है. Yes. Yes. H part. All rich people? No. All intelligent students in a school? All intelligent students in a school? Not well defined. अब हमें क्या पता कि इंटेलिजेंट की डेफिनेशन क्या है? Not well defined. ये तो नहीं है कि इंटेलिजेंट है, मान लो किसान भी इंटेलिजेंट है, उसके ऑलवेज 100 आएंगे. पेपर टफ आ गया तो उसके 70 भी रह सकते हैं. पेपर इजी आ गया तो जो वीक स्टूडेंट है वो भी 100 ले सकता है. दैट इज नॉट वेल डिफाइंड. J part, last part of this one is all interesting books in your school library. अब Not well defined. रीजन पता होना चाहिए क्यों. ऐसे नहीं है कि हाँ ठीक है. Because yes बच्चे बोलो. some books are interesting for me. Some books are Some books are interesting for me, and some books are interesting for you. Yeah. Next one is second sum.
Rewrite the following statement using the set builder notation. First part, x belongs to set A. इसको कैसे लिखेंगे? X belongs to set A. Then how we can write this one? Are you listening? Second sum, बच्चे. Rewrite the following statement using the set builder notation. First is x belongs to set A. What we have to write down? X such that x belongs to A. This is the set builder form. Okay? Understood? Okay. Yes. Second part, y is not an element of B. क्या लिखेंगे? y does not belong to B. Belong to symbol डाल के not मतलब कट का साइन लगा देना. Understood? Yes, sir. C. X and Y are elements of C. X and Y are elements of C. तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? What we have to write down? क्या लिखें बच्चे? Tell me. X and Y Such that X and Y belongs to C. C. Okay? Disturbance कितनी क्यों आ रही है बेटा? सानवी? Yes. Disturbance क्यों आ रही है इतनी? I don't know. Okay. D. हो जाएंगे बच्चे ये सारे सम्स? Yes. Set E is an empty set. तो set E लिख के क्या लिखेंगे हम? 5 डालेंगे. ओके? या इसको सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है ना, तो x क्या लिखेंगे? x is an empty set. X is an empty set. ऐसे लिख देंगे. सारे हो जाएंगे बच्चे. You can do it easily. Now third sum. Write each of the following set in the roster form. Roster form में लिखना है. थर्ड का A. Yeah. A किसको बिलोंग कर रहा है? Set of all composite number. Set of all composite number between 50 and 70. 50 and 70 के in between. तो रोस्टर फॉर्म क्या थी? टेबुलर फॉर्म. कर्ली ब्रैकेट 50 एंड 70 के इन बिटवीन फर्स्ट कंपोजिट नंबर कौन सा है बेटा? टेल मी. 51. 51 is divisible by 3 ना. प्राइम नंबर कौन से होते हैं? हैविंग ओनली नंबर डिविजिबल बाय ओनली 2 नंबर्स. और कंपोजिट हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स और divisible by more than 2 numbers are called composite numbers. 51 is a composite. Next is 52 is composite. Yes or no? No. Yes. No. 52 is composite बेटा. 52 1 के टेबल पे भी डिविजिबल है, 2 के टेबल में भी आता है, 13 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है ना? नेक्स्ट कंपोजिट नंबर 53. उससे नेक्स्ट 54. उससे नेक्स्ट 55. 56 is also composite. 57 3 के टेबल में आता है. 58 कंपोजिट है. 59 is prime. 59 नहीं आएगा. 59 किसी नंबर पे डिविजिबल नहीं है 1 और 59 को छोड़ के.
60 is composite, 61 is prime, 62, 63 is composite, 64, 65, 66, 67 is prime, 67, 68, 69 is composite, 70 is composite. This is the roster form of composite number between 50 and 70. ये first part का answer. Now the second part, B part. B is a set of natural number less than 10. B is a set of natural numbers less than 10. 10 से less natural numbers. Yes, बच्चे, tell me. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. आगे 9 आएगा. 9. Yes. यहाँ पे ऊपर मैंने गलती की है फर्स्ट पार्ट में. क्या मिस्टेक की है बताओ मुझे. Tell me the mistake in the first part, बच्चे. 51. No, 70 is not included. Between बोला है. Okay. 17. ठीक है ना, ये मिस्टेक थी. ये तो सही है सारे. 51, 52 सारे कंपोजिट हैं. ओके. सानवी ध्यान रखा कर. C is a set of multiple of 4 between 15 and 35. Yes, बच्चे. C set is a multiple of 4 between 15 and 35. 15 and 35 के in between. बोलो बच्चे. Give me the set. First is 16. Between 15 and 35, na? First is 16. 16. Second. Then 20. Then 24. yes. Next one is 28. 28. 32. And the last is 32. This is the answer. D. D is a set of factors of 36. पहले factors of 36 ही निकाल लो. उसको रोस्टर फॉर्म में तो बाद में लिखेंगे. Factors of 36 बच्चे. 2. 1 नहीं है. 1, 2. हाँ. 3. Yes. 4, 6, 9, 6. 9, then 12, then 18, then same आ जाएंगे. And last one is 36. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? D is a set of factors of 36. ये सारे यहाँ पे डाल देंगे curly bracket के in between. Enclose कर देंगे इनके बीच में. This is called answer. E. E is a set of letter of the word. Word क्या दिया है? Words. Worth. Wordsworth. Yes बच्चे. क्या लिखेंगे? W O R D S T H. Yeah, very good. सानवी को तो आता है मैथ. Very good. F. Impossible word है हमारे पास. तो F is a set of vowels. इसके अंदर vowels कौन कौन से हैं? I इस letter I O E. बस. This answer. Yes. G. G is a set of consonant in the vowel unicorn.
जी, इसका आंसर बताओ बच्चे। N C R N C। एन आएगा फिर से? हाँ बस, नहीं। मजा तो आ रहा है करने का काम, ऐसे तो नहीं है धक्के से बैठे हो बच्चे? नहीं। पहले ट्यूशन रखी थी कहीं पे, हाँ। फिर छोड़ क्यों दी? बोलो बेटा सानवी, हाँ, छोड़ क्यों दी वो? कि करवाते नहीं थे कुछ? करवाते थे। करवाते थे। चलो, integers between -6 and 5, that is the H set. Tell me बच्चे, between -6 and 5 के in between integers को roster form में लिखना है तो क्या आएगा सबसे पहले? -5 -5, -5 yes, -4 yes, -3 yes. -2 -1 0 1 2 3 4। Very good. I part बच्चे, I is a set of 2-digit number less than 20. 2-digit number less than 20. 20 से less 2-digit number. That is the I set. Tell me. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। पीछे से आंसर देख के तो नहीं बोल रही? नहीं। नहीं। चलो, J. J is a set of prime number less than 20. Prime numbers less than 20. 20 से less prime number J set. Yes बच्चे. First prime number 2 2 3 5 7 11 13 17 19। very good. तेरे मार्क्स कम आ गए ना तो तेरे को यहाँ पे आके पिटूंगा मैं मुंबई में, ठीक है? हाँ। मार्क्स नहीं कमाने चाहिए, ठीक है? मैथ में पूछो कुछ मर्जी पूछो जो नहीं आता। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन द रोस्टर फॉर्म। अब इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। पहला जो हमें दिया हुआ है ए सेट x such that x belong to natural, x is less than 20। ये लेस का सिंबल होता है, जिस तरफ मतलब खुला होता है वो ग्रेटर होता है, x की तरफ क्या है? कॉर्नर है, तो वो स्मॉलर है। तो रोस्टर फॉर्म में क्या आएगा? रोस्टर फॉर्म में क्या आएगा बच्चे? देखो x belong to natural natural, numbers more than 20। less than 20 बच्चे। ये देखो जिस तरफ मुंह ओपन है बच्चे, ये तो 20 x इस साइड है तो x की तरफ ये कॉर्नर है, तो मतलब x क्या है? लेस है किससे? 20 से। 20 से लेस नेचुरल नंबर 1 2 3 रोस्टर फॉर्म लिखनी है ना, मतलब किस फॉर्म में लिखना है हमने इसको? टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म इज द सेम थिंग। अप टू 20 आ जाएगा, लिख लोगे? हाँ। पास में टीवी चल रहा है सानवी? नहीं। ये कौन चल बोल रहा है फिर बीच में? मम्मा। मम्मा बोल रहे हैं? तो मम्मा की ऐसी की तैसी, उनको चुप करवा के अब सर लड़ रहे हैं, ठीक है? हाँ। चलो मजाक कर रहा हूं। is a 1 digit composite number। यस बच्चे। बी सेट बताओ मुझे, x such that
ये जो लाइन होती है दैट मीन्स सच दैट x इज अ वन डिजिट कंपोजिट नंबर। वन डिजिट कंपोजिट नंबर कौन कौन से हैं बच्चे, बताओ मुझे फटाफट, टेल मी फास्ट। One. One is not composite, one is neither prime nor composite। हाँ. हाँ, मुझे साथ ले जाना Four. एग्जाम में। नेक्स्ट वन, Six. नेक्स्ट वन। 8. 9. 10. लेस देन 10 बोला था, वन हाँ. डिजिट Okay. बोला था, मतलब लेस देन नहीं, वन डिजिट बोला था ना, तो 10 इज अ टू डिजिट नंबर। हाँ. मुझे साथ लेके जाना है एग्जाम में, है सानवी? नहीं. नहीं, मेरे को लग रहा है, फिर सही क्यों नहीं बता रही? सोच समझ के बच्चे रीड करके अच्छी तरह क्वेश्चन को फिर आंसर देना होता है। ऐसे नहीं है कि अपनी मर्जी से दे देंगे, टीचर ने काटा मार देना है। ये है बच्चे हमारे पास C x such that x belong to integer and x is greater than -6 but less than 3। x क्या है, -6 से ग्रेटर है बट 3 से लेस है, तो C का रोस्टर फॉर्म क्या बनेगी? -5. यस, -4. यस, -3. -2. -1. 0. 1 and 2। This is understood? हाँ. Now the next one is D। क्या गिवन है हमें? x such that x belongs to whole number। ये दो x क्यों डाले, एक ही डालना था, वैसे ही डाल दिया उन्होंने, कॉपी रॉन्ग हुआ है। अब बच्चे ये चीज है 3x - 7 less than 20। 3x is 20 plus 7 less, देखो जो -7 है उस साइड जाके क्या हो जाएगा, +7 हो जाएगा। 3x is less than 27 and x is less than 27/3 ना, क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। x is less than 9, तो D का बच्चे सेट क्या बनेगा हमारे पास, ये भी देखना है, ध्यान रखना है। x बिलोंग टू होल नंबर। यस बच्चे बोलो, मतलब उसको पहले सॉल्व कर लेना है जो चीज दी है, उसके बाद उसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। यहाँ पे लिख रहा हूं मैं x लेस देन 9 एंड x बिलोंग टू होल नंबर, तो कौन से नंबर आएंगे बच्चे यहाँ पे सानवी? 1, 2, 0 भी 3, आएगा 4, बच्चे, 0 नहीं आएगा। 5, 6, 7, 8. मैंने क्या पूछा है सानवी, 0 आएगा कि Whole नहीं आएगा? number. 0 आएगा, आएगा. तूने बोला नहीं था ना, बोलो। दिस इज आंसर बच्चे। हाँ. डी, उसके बाद आ जाता है ई पार्ट। टाइम 6 से ऊपर हो गया, चलो कोई बात नहीं, ये सब कंप्लीट करते हैं हम बच्चे। x is equal to n square where n belong to natural। कैपिटल N दिया है ना, मतलब नेचुरल से बिलोंग करता है। दिस इज ई सेट। E is equal to क्या आएगा बच्चे, बोलो। 1 X स्क्वायर is equals to नेचुरल, n के प्लेस पे 1 फिल करो, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर बेटा 1, 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4, फिर 3 का स्क्वायर 9, 4, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 9, स्क्वायर 25, 16, 25 एंड सो ऑन, ऐसे डॉट 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 डाल देने बच्चे। 25. अंडरस्टूड? Yes. एफ सम बच्चे, एफ तूने मुझे बताना है। x इज इक्वल टू n क्यूब, n बिलोंग टू नेचुरल
where 14x 100, where क्या दिया हुआ है हमें, x क्या है, ग्रेटर देन 14 बट लेस देन 100। तो सिंपल है, सबसे पहले n की वैल्यू 1 फिल करें तो क्या आएगा, 1 का क्यूब क्या आएगा बच्चे सानवी, 1 cube 1. 1, बट यहाँ पे क्या है, x क्या है, ग्रेटर देन 14, तो 1 काउंट नहीं करेंगे। नेक्स्ट नंबर 2, 2 का क्यूब, 2 का क्यूब 8. 8, 8 इज आल्सो, x क्या है, ग्रेटर है 14 से, तो नहीं आएगा। 3 का क्यूब, 3 का क्यूब, Directly yes Richard, greater than 14. that is 27। फिर बच्चे ऐसे नहीं, 100 से लेस जो क्यूब हैं और 14 से ग्रेटर हैं वो यहाँ पे लिखने हैं। 4 का क्यूब Okay. 64, that is also this one। फिर 5 का क्यूब 125, वो ग्रेटर हो जाएगा 100 से, बट 100 से लेस चाहिए था, लेस सिंबल इज देयर, तो ये आंसर है बच्चे हमारा एफ पार्ट का। जी पार्ट, g is equal to x is equal to 1 upon n plus 1, where n belong to capital N। n किसको बिलोंग कर रहा है, कैपिटल N को। तो बच्चे और क्या गिवन है साथ में, 1 is greater than or equal to n but less than equal to 4। सबसे पहले बच्चे n क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, 1 और इक्वल भी है ना, 1 फिल करो, यहाँ पे क्या आएगा, हाफ आएगा ना। जब यहाँ पे n की वैल्यू 1 फिल करेंगे, क्योंकि n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 लिखा हुआ है, लिखा है ना, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 1 अपॉन 1 प्लस 1 ना, वी गेट 1 अपॉन 2। यस और नो, नहीं समझा। x बच्चे किसके इक्वल है, 1 अपॉन n प्लस 1 की इक्वल है ना। हाँ। n की वैल्यू क्या है, बिलोंग टू नेचुरल कर रहा है, n बिलोंग टू नेचुरल, और n किसके इन बिटवीन दिया हुआ है बच्चे, 1 और 4 के इन बिटवीन दिया हुआ है ना। n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, मतलब 1 भी काउंट होगा और उससे ग्रेटर वैल्यू, बट 4 से लेस और उसके इक्वल, मतलब कौन, इसका मीनिंग क्या हुआ, 1 n 4, कौन कौन सी वैल्यू n की आएंगी यहाँ पे, n is greater than 1 but smaller than 4. इक्वल टू सिंबल भी इज आल्सो देयर, जब ये सिंबल आ गया ना साथ में, डंडी साथ में आ गई ना, तो दैट मींस इक्वल। तो कौन कौन सी वैल्यूज आएंगी बच्चे यहाँ पे, टेल मी फास्ट, यहाँ पे n की वो कौन कौन सी वैल्यूज आएंगी बच्चे, 1 2 3 4, ये 4 वैल्यूज आएंगी ना। तो सबसे पहले बच्चे हमने यहाँ पे n के प्लेस पे 1 फिल किया, तो x कितना आएगा, n के प्लेस पे 1 फिल करो और कैलकुलेट करो इस चीज को, हाफ। फिर 2 वैल्यू फिल करो यहाँ पे, तो क्या आएगा, 1/3. फिर 3 फिल करो यहाँ पे, 1/4, फिर 4 फिल करो यहाँ पे, 4 फिल करो तो क्या आएगा, 1/5. ये सेट रोस्टर फॉर्म होगी बच्चा जी पार्ट की। Okay. एच पार्ट, मतलब ये पहले n हमने फाइंड कर लिया कि n की कौन कौन सी वैल्यूज थी, वो इसके अंदर जो सर्कल किया इसके अंदर फिल कर दी, तो x की वैल्यूज आ गई, वही लिख दी बच्चे हमने। h इज x इज अ मल्टीपल ऑफ 3, 3 का मल्टीपल है, बट x क्या है, लेस देन और इक्वल टू 30 है, x क्या है, लेस देन और इक्वल टू 30 इज देयर। यस बच्चे, 3 का मल्टीपल बट 30 से लेस, बोलो, और इक्वल टू भी। यस सानवी, फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 3 X is multiple of 3. and x is less than 3, 6, 9 12 15, 3 का 12. टेबल, हाँ, क्या, हाँ 24, 27.
30। आई पार्ट बच्चे, आई क्या गिवन है हमें? x, x is a factor, x is a factor of 144 and x is greater than 50. 50 से greater जो 144 का factor हो बच्चे, that is only two factors are there because x is greater than 50 बोला है, x is a factor of 144. So there are only two factors which are greater than 50. That is one is 72, 72 to the 144 होता है ना, और दूसरा फैक्टर 144 खुद बच्चे नंबर जो होता है वो अपने नंबर का अपने आप का इटसेल्फ का भी फैक्टर होता है, और कोई नंबर जो इनके बीच में आ रहा हो तो 144 के टेबल में आता हो नहीं, क्योंकि 72 टू जा 144 होता है, दैट्स द रीजन। ओके ओके। अब बच्चे जे पार्ट, x इज अ कलर ऑफ रेनबो। अब मुझे रेनबो के कलर्स नहीं पता, ये तू बताएगी। पता है तेरे को कौन कौन से कलर होते हैं रेनबो में? हाँ। मुझे भी बता दे, मेरी नॉलेज इंक्रीज हो जाएगी। फर्स्ट वन इज वायलेट, सेकंड वन इंडिगो, ब्लू, थर्ड नेक्स्ट वन ग्रीन, विबग्योर, है ना? नेक्स्ट वन येलो, येलो, या ऑरेंज एंड रेड। यस। ये आंसर है बच्चे हमारा। फोर्थ सम कंप्लीट हो गया। तूने इसके क्रॉस क्यों लगाया हुआ है फोर्थ सम पे सानवी? हाँ फोर्थ सम में बच्चे क्रॉस क्यों लगाया हुआ है? नहीं, वो लास्ट ईयर का। अच्छा, बुक क्लास एक ही है। ओके बच्चे, जो भी कल टाइमिंग मैं रखूंगा बच्चे मैं बता दूंगा, इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है सानवी? ओके। 12 o'clock फ्री हो जाते हो? 12:20 के बाद। 12:20 के बाद। चलो सैटरडे है, सैटरडे को जल्दी नहीं होते? नहीं, कल स्कूल नहीं है, कल ट्यूशन है इंग्लिश का। ओके चलो ठीक है बच्चों के, बाय।